شہر قید میں مہنگائی نے شہریوں کا جینا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی ناقص منصوبہ بندی نے تیل، گھی، آٹے اور غذائی اجناس سمیت اشیاء ضروریات شہریوں کی قوت خرید سے باہر کر دیے ہیں۔ کراچی میں مہنگائی کا جال، عوام بے حال۔ گھی اور تیل کی قیمتوں نے عوام کا نکال دیا تیل۔ شہر میں کھلا کھانے کا تیل فی لیٹر ایک ماہ کے دوران 40 روپے مہنگا ہو کر 370 روپے تک، جبکہ برانڈڈ کمپنیوں کا فی لیٹر تیل 430 اور گھی 420 روپے تک پہنچ گیا۔ پہلے تو کہتے تھے کہ غریب دال اور روٹی کھائیں گے گوشت کے حساب سے، ابھی وہ دال اور روٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو غریب بندہ گوشت کیسے کھائے گا؟ آٹا بھی مہنگا ہے، چینی بھی مہنگی ہے، سبزی بھی مہنگی ہے، تنخواہیں نہیں اتنی۔ غذائی اجناس میں کابلی چنا، ماش اور مسور کی دالوں سمیت بیشتر دالیں سستی نہ ہو سکیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 2.5 نمبر آٹا 70 روپے فی کلو سے نیچے نہ آ سکا، تو وہیں فائن آٹا تاحال 80 روپے فی کلو پر ہی براجمان ہے۔ چھوٹی چکی کا آٹا 80 روپے فی کلو سے لے کر 84 روپے فی کلو سے کم نہ ہو سکا۔ اب 700 روپے دیہڑی پڑتی ہے، 680 روپے کا 10 کلو کا آٹا ہے، اور ماشاءاللہ 8-9 افراد جس گھر میں کھانے والے ہوں گے وہ کیا پورا کریں گے؟ دالیں تو کھانے کا کام ہی نہیں ہے، سبزی وہ بھی جو ترکی مرکی گلی سڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کے لاؤ اور کھاؤ، دالیں بھی بس سے باہر ہو چکی ہیں۔ مہنگائی کے ستائش شہری کہتے ہیں حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا سکتی تو ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کراچی میں مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ ایک ہفتے کے دوران سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ مٹر فی کلو 350 روپے سے 400 روپے تک پہنچ گیا۔ دیگر سبزیاں بھی مہنگی ہوئیں۔ کراچی میں مہنگائی کی لہر نے شہریوں کے لیے سبزیاں کھانا بھی مشکل کر دیا۔ مٹر مارکیٹس میں ایک ہفتے کے دوران 50 روپے تک مہنگے ہو کر 350 اور کہیں کہیں 400 روپے تک فروخت ہو رہے ہیں۔ ادرک 20 روپے اضافے سے 400 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ لہسن کی قیمتوں میں بھی 20 روپے تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں لہسن 300 روپے سے بڑھ کر 320 اور چھلا ہوا لہسن 333 روپے تک فروخت ہوا۔ شہر قید میں قائم یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی عجیب صورتحال ہے۔ چینی اور آٹے کی سپلائی بحال ہونے کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کی عدم توجہ سے کہیں آٹا ہے تو چینی غائب، اور کہیں تو دونوں ہی چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ کہیں آٹا تو کہیں چینی۔ شہر قائد میں اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی پر ہر طرف بے چینی۔ شہر میں متعدد یوٹیلیٹی سٹورز پر کہیں آٹے تو کہیں چینی تو کہیں دونوں ہی کی عدم دستیابی کی شکایات سامنے آئیں۔ یعنی کہ لائن پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں دیتے۔ جیسے ابھی 4 کلو دی، میں نے بولا چلو 1-2 کلو اور دے دو، نہیں انہوں نے دی۔ پھر بھی فائدہ یہ ہے کہ دے دی، چلو 4 کلو بھی، اتنی بھی مہربانی ان کی ہے بہت۔ ہم دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو، کیونکہ میں ہمیشہ گھر کا سودا خود لیتا، جو آٹے کی تھیلی 10 کلو میں 300 کی لیتا، آج میں 680 کے لیتا ہوں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب لائن پر کھڑے ہو کر دھکے کھائیں اور باری آنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جس کی طلب ہے وہ چیز ہی نہیں۔ الحمدللہ بہتر ہے، باہر کی نسبت سے جو ہے نا یہاں بہتر ہے کافی۔ جی یہ ہے کہ اس میں عوام کو ریلیف مل جاتی ہے تھوڑی بہت نا۔ باہر تو ہر چیز آپ دیکھیں کہ بہت مہنگی ہے، یہاں پہ تھوڑی بہت جو ہے نا فرق ہے۔ پریشانی تو کافی ہوتی ہے، آٹا چینی موجود نہیں ہوتا، کئی دفعہ آگے لمبی لائنوں میں لگنے کے باوجود جو ہے خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، تیل، گھی، چینی کی بنا کسی شرط کے فراہمی کو ممکن بنا دیا جائے تو یہ مراکز دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ صنعت کاروں نے شرح سود میں 1.5% اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ بزنس مین گروپ چیئرمین زبیر موتی والا کہتے ہیں کہ شرح سود میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ صنعتی فروغ میں رکاوٹ بنے گا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 1.5% اضافے پر بزنس کمیونٹی کا شدید رد عمل آ گیا۔ کراچی کے تاجروں نے شرح سود میں اضافہ مسترد کر دیا۔ بزنس مین گروپ چیئرمین زبیر موتی والا کے مطابق موجودہ صورتحال میں شرح سود میں 1.5% اضافہ بہت زیادہ اور عجلت میں کیا گیا، جس کے باعث صنعت، اسٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاری سب پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کو بتدریج بڑھاتے، 0.5% اضلاع، اس کے بعد 0.5%، تو میرے خیال سے وہ ابزارب بھی ہو جاتا، اور اتنی ایپیٹائٹ نہیں ہے۔ اس سے جو اثرات آئیں گے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک آئیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بڑا اثر آئے گا، آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر بہت اثر آئے گا، آپ کی پروڈکشن لائنز کے اوپر آئے گا، اور مہنگائی میں سمجھتا ہوں کہ بڑھے گی
कम होने का कोई चांस नहीं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि हुकूमत इजनास की सप्लाई बढ़ाकर ही महंगाई की बढ़ती रफ्तार को कम कर सकती है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं बैंक से बोरोइंग करके काम कर रहे होते हैं, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हो या लोकल काम कर रहे हो, तो जब हमारी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो फिर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो जो ये फार्मूला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो दूसरे ममालिक में है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो लोग सेविंग्स में चले जाएंगे, यहाँ तो लोगों का गुजर बसर महंगा हो रहा है, उसी में पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये लोग सेविंग की तरफ कहाँ जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी ने साफ साफ कहा है कि शरह सूद में इजाफे से मईशत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। स्टेट बैंक तिजारत और सनत के बेहतर मफाद में शरह सूद में इजाफा फौरी वापस ले। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद का कहना है कि सनतकार पहले ही गैस बहरान से मुश्किलात में थे और अब शरह सूद में एक साथ 1.5% का इजाफा मजीद मुश्किलात पैदा कर देगा। गवर्नमेंट कल स्टेट बैंक ने एक ऐलान और कर दिया कि 1.5% शरह सूद बढ़ा दी है। इससे सनतकारों पे एक बहुत बड़ा बम गिरा है और इससे सनतें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। पहले ही जो है ना हम अपनी परेशानी में मुब्तला है, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। मैं स्टेट बैंक से गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पे इसको वापस ले और शरह सूद में इजाफे से मईशत को फ़ायदा नहीं नुकसान होता है। शरह सूद में अगर इतना ज़्यादा इजाफा करेंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। काइंडली इस मैटर को वो देखें और इसको फौरी तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। मुतालबा करते हैं और एहतजाज करते हैं। आलमी मार्केट में सोना $12 सस्ता होने पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 800 रुपये सस्ता होकर 1,23,800 रुपये का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $12 सस्ता होकर $1846 फी औंस का हो गया है। इसका असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना की कीमत 800 रुपये कमी के बाद 1,23,800 रुपये पर आ चुकी है। नवंबर में अब तक इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे से 173 रुपये 74 पैसे की बड़ी रेंज में ट्रेड हुआ। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा इख्तियार बेग का कहना है कि पता ही नहीं डॉलर का क्या रेट हो चुका है। सबसे परेशान है कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 73 पैसे से कम होकर 175 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव पर सनतकार शदीद परेशान हो गए। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, नवम्बर में रुपए के मुकाबले डॉलर सिमत ही नहीं बना सका। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। हम एक तरफ परेशान हैं, आप देख रहे हैं डॉलर की वजह से। डॉलर के 174 पे पहुंच गया 176 से आके, तो इम्पोर्टेड कॉस्ट जो है बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई हैं, फ्रेट बढ़ गया है, महंगाई आपको सब पता है कि अक्रॉस द बोर्ड, तो वो हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 177 रुपए का हो गया। हफ्ते में यूरो 5.5 रुपए सस्ता होकर 198 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 1.5 रुपए कमी से 237 रुपए का हो गया है। हफ्ते में इमारती धर्म 60 पैसे कमी से 49 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे सस्ता होकर 46 रुपए 70 पैसे का हो गया है। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। शेयर्स की खरीदारी पर हफ्ते में 100 इंडेक्स में 740 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 740 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1.62% इजाफे से 46,489 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते में इंडेक्स की बुलंद सतह 46,628 और कम सतह 45,544 रही। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 46 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 22 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर की कीमत बढ़ने पर हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 125 अरब रुपए इजाफे से 7,944 अरब रुपए पर पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में अहम माशी अदद-ओ-शुमार पर सरमायाकारों की नजरें जमी रहीं। अक्टूबर 2020 के मुकाबले अक्टूबर 2021 में तरसीलात ज़र 10% इजाफे से 2 अरब 50 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 में टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 7.64% इजाफे से 1 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुँच गयी और अक्टूबर में करंट अकाउंट खसारा 53 करोड़ डॉलर इजाफे से 1 अरब 66 करोड़ डॉलर पर पहुँच गया है। मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 1.5% इजाफे से 8.7
5% कर दी गई है। हुकूमत सिंध का महकमा सेहत मवेशी माहीगीरी में खाली 412 आसामियों पर नई भर्तियों का फैसला कर लिया। महकमा सेहत में 28 महकमा सेहत और 348 वेटरनरी ऑफिसर्स की भर्तियां की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नेडियो से। आज़ाद बताएगा किस क्राइटेरिया के तहत ये भर्तियां की जाएंगी। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत, महकमा मवेशी व माहीगीरी में 412 17 ग्रेड के जो है अफसरान की खाली असामी पर नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ये भर्तियां जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएगी। इस हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन भर्तियों के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 28 जो डॉक्टर्स और प्लानिंग ऑफिसर्स हैं महकमा सेहत के, उनकी भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 384 जो है वेटरनरी ऑफिसर महकमा मवेशी व माहीगीरी में भर्ती किए जाएंगे। इस हवाले से इससे कबल कई माह तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुअत्तल था, जिसके बाद नई भर्तियां ना हो सकी और इस वक्त भर्तियों का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया आज़ाद। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम ने मुल्क में सेहत के निज़ाम में बेहतरी लाने पर जोर देते हुए कहा कि जाली अद्वियात बनाने वालों और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनका मज़ीद क्या कहना था, देखते हैं ये रिपोर्ट। चौथी पाकिस्तान हेल्थ केयर समिट मुकामी होटल में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर आसिम ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन मौके न मिलने की वजह से वो बाहर चले जाते हैं। मसाइल हल किए जाएं, नहीं तो नुकसान होगा। मेडिसिन इज समथिंग व्हिच वाज ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय मैनकाइंड and has been there in some form or the other till since man came on earth. They used some kind of medicines with different names, with different elements, with different things. They researched, they used, and then they came finally to what we call as medicines. डॉक्टर आसिम हुसैन ने जाली अद्वियात बनाने वालों और अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर भी जोर दिया। As far as the pharmacy is concerned in Pakistan, that is also in its stage of growth. And as Mr. Iqbal mentioned, there is a metric pass, there is an interpass. We are not, unfortunately, only produce pharmacists. साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि अद्वियात बड़ी तादाद में बन रही हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर अद्वियात फराहम करने वाले तालीम याफ्ता नहीं। पाकिस्तान का सिस्टम खराब है। अद्वियात फार्मासिस्ट की निगरानी में दी जानी चाहिए। सिंध हुकूमत ने सूबे में आटे की किल्लत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगाने से कबल वफाक में बैठे बड़े चूहों को मारें, छोटे चूहे अपनी मौत आप मर जाएंगे। आटे की किल्लत से मुतालिक चहमगोइयों पर सिंध सरकार जवाब देने के लिए मैदान में आ गई। आटे की किल्लत से मुतालिक दावे मुस्तरद कर दिए। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला ने सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदम की सप्लाई शुरू हो गई है। काश्तकारों को सब्सिडी की मद में 12 अरब रुपए दिए। फ्लोर मिल्स और चक्की मालकान को माहाना 2,40,000 टन गंदम जारी की जाती है। बोला गया कि गवर्नमेंट का आटा अवेलेबल नहीं है। फाइन आटा उन लोगों ने खरीदा 72 रुपए के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। वो वीडियोस भी हैं और उस स्टोर्स के बिल भी हैं जो मैं शेयर करूंगा। महंगाई अपने शहरों में ये कंट्रोल कर नहीं सक रहे। सारा ब्लेम आ रहा है, कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि हम 12 लाख मीट्रिक टन गंदम लेते हैं तो 16 लाख टन चोरी कहां से हुई। वफाक में बैठे बड़े चूहे जो खरबों रुपए खा गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजीर तालीम सईद गनी का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो कैसे कीमतें कंट्रोल करेंगे। हर वो चीज़ जिससे आप अपना चूल्हा जला सकते हैं वो महंगी होती जा रही है। अब इन हालात में अगर आप ये तस्वुर करें कि जी आप सूबे को ये कहें कि जी नहीं कीमत है वो करो जो सरकार ने तय की है, तो ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए जो डिमांड एंड सप्लाई का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सीधा सा है, और जब आपके मुल्क में ज़रूरियात बढ़ती हैं तो ये रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीज़ल हो, उनकी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक लोगों को फराहम करें। जब वो नहीं होगी तो महंगाई बढ़ती है। फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने सिंध में गंदम फराहमी में रुकावटों की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि वो 55 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। मुल्क में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं। दरामदी गंदम 7,000 रुपए फी मन पड़ती है। बच्चों के हकूक से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुर्बत के बायस आज भी करोड़ों बच्चे तालीम की बजाय मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं।
बच्चे मन के सच्चे, माँ बाप के दिलों की धड़कन, आँखों का तारा और दिल का चैन होते हैं। इस दिन के मनाने का मकसद बच्चों की तालीम, सेहत, सैर व तफरी, ज़हनी और जिस्मानी तरबियत के हवाले से शऊर उजागर करना है। 2 साल से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं माशाल्लाह से। हम घर पे बाप हमारा काम करता है टेलर का, इसलिए हमारा ये दिल चाह रहा था इस काम करने का, हमने करा ये काम। स्कूल मम्मा ने बोला था स्कूल में लग जाओ, हमारा दिल नहीं लगा, हमने काम सीखने का बोला था, हम काम सीख चुके हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे बढ़ती महंगाई और गुर्बत के बायस इन तमाम सरगर्मियों से महरूम होते हैं और मेहनत मुशक्कत की जिंदगी गुजारने लगते हैं। शेर खान भी उन्हीं में से एक है। मैं अपने घर का लाड रहा हूँ, एक ही लाड रहा हूँ, 7 बहनें और एक ही भाई हूँ, उनके लिए कमाना चाहता हूँ। मैं अपनी बहनों को कमाऊँगा, खिलाऊँगा, शादियाँ वादियाँ करवाऊँगा उनकी। मैं अपनी मम्मा के हाथ में पैसे रखता हूँ तो वो खुश होती हैं, बोलती है माशाल्लाह से मेरा बेटा 300 रुपये लाया है, ऐसे लाते रहे इंशाल्लाह। शेर खान यूँ तो बच्चा है मगर उसकी वाहिद सोच उसकी फैमिली है। बहनों की ख्वाहिशात को पूरा करना उसे अच्छा लगता है और जब माँ के हाथ पर रकम रखता है तो माँ खुशी से निहाल हो जाती है। यूँ तो पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद है और चाइल्ड लेबर के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दावे भी किए जाते हैं, मगर गुर्बत की चक्की में पिसते लोग अपने नन्हे फूलों से मेहनत मजदूरी करवाने पर मजबूर हैं। पोर्ट ग्रैंड में चिल्ड्रन डे की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लियारी के बच्चों ने टैबलोज पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बल्दियात और इतलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। मज़ीद क्या कहते हैं जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल। जी, पोर्ट ग्रैंड में आज चिल्ड्रन डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर लियारी के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए और यहाँ के आज के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर बल्दियात और इतलात नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहेंगे, आज इन बच्चों के दरमियान मौजूद हैं आप, किस तरह से इनका मुस्तकबिल देख रहे हैं और आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है? देखें, बच्चों के आलमी दिन पर आज यहाँ पोर्ट ग्रैंड में बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जो लियारी कैफ़े गर्ल्स की तरफ से रखा गया, जिसमें बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और जो इसकी थीम है कि अब बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, तो उस पर काम हो रहा है। और आपके इल्म में है कि वैसे ही पूरे पाकिस्तान में हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक तरक्याती और बेहतरी का प्रोग्राम है। और अगर आज लियारी गर्ल्स कैफ़े की बात करें तो लियारी वालों से तो चेयरमैन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे दिए हैं जो अभी शुरू भी हुए हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, इनके एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको अपग्रेड किया गया है, फिर इनकी सेहत पर बहुत तवज्जो दी गई है हेल्थ के लिहाज से, तो बहुत ज़बरदस्त है जी। बिल्कुल जी। नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद से, उनका कहना था कि बच्चे उन्हें बहुत पसंद हैं और वो अपने पोते पोतियों के साथ भी खुश रहते हैं और लियारी के बच्चों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर देख रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इनके बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स होने चाहिए। तालीम राहिल आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद से ताल्लुक़ रखने वाले टेबल टेनिस प्लेयर ताज़ीम रहमान अपनी बेटी को भी इसी खेल का चैम्पियन बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए वो अपनी बेटी की कोचिंग की जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज अपनी रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं कराची पोर्ट्रस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, जहां केपीटी रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेला जा रहा है। लड़कियां भी इस टूर्नामेंट में अपना टैलेंट दिखा रही हैं। मारिया ताजीम भी खूब अच्छा खेल पेश कर रही हैं। मारिया के कोच इनके वालिद ताजीम रहमान हैं, जो खुद भी टेबल टेनिस के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ताजीम रहमान कहते हैं कि खेल लड़कियों के लिए इंतहाई जरूरी है। वो खुद अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्ची अगर परफॉर्मेंस देती है तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। अगर हम लोग ऐसी लड़कियों को पीछे हर चीज़ में रखते रहेंगे, उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि अपनी ज़िंदगी फैसले खुद कर सकें, अपनी ज़िंदगी के कोई मामला हो वो सॉल्व कर सकें। जब कंपटीशन में जाती है बच्ची तो उसको ये होता है कि मैं किसी तरह जीतूँ। इसी तरह हर मामला में वो जाएगी तो उसे हर चीज़ में जो ना जीतना आएगा। जबकि मारिया ताजीम कहती हैं कि लड़कियां हर खेल में भरपूर हिस्सा ले रही हैं, वो किसी से कम नहीं हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि वालिद खुद ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि जहां भी जाओ साथ होते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है। टूर्नामेंट में शरीक दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि लड़कियों को दीगर खेलों की तरह टेबल टेनिस भी खेलना चाहिए। गेम बहुत अच्छा है और पेरेंट्स को अपने
جو والدین کو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے اسپورٹس کے لیے. ٹیبل ٹینس ایک بہت اچھا گیم ہے جس میں بہت اچھا وارم اپ بھی ہو جاتا ہے اور وومنس تو ایزیلی کھیل سکتی ہیں اس گیم کو. یہ گیم بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کو کھیلنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے. سارے اسپورٹس سے بالکل الگ ہٹ کر ایک گیم ہے. ٹیبل ٹینس ایک انڈور کھیل ہے جس کو لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد بہت شوق سے کھیلتی ہے. ان کو ملنے والے مواقع پاکستانی خواتین کو بین الاقوامی شناخت دے سکتے ہیں. کیمرہ مین قیوم شیخ کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21.